This conference will now be recorded. I hope you all of you able to see my screen. Please confirm. Yes, sir, we can see. Okay, great. So as we discussed, everyone have a much idea about the IT, like as a server, Linux, networking, storage part. So our agenda to understand each and every points related to the Azure AG104 based content means it's a part of administrator, Azure administrator. So I'll try to give you the complete information as per the agenda, as per the blueprint of Microsoft Azure. So what we need to do, first of all, we just need to check the content that we need to cover in our 6 weekend training. Course code, as we discussed before, AG104 is a certification code. The certification name is Azure, Microsoft Azure Administrator, and Microsoft Administrator contain up to 5 different modules. So these all are the module: manage Azure identity and implement your storage services, deploy and manage Azure compute services, manage virtual networking, monitor and maintain Azure resources. So these all are the module that we need to cover. Each and every module contain up to 7 to 8 different practicals. So in entire training we will cover up to more than 150 practical. So these practicals are help to crack any interview, and also these practicals activity can help us to clear the certification or clear the examination as well. Is it okay, guys? Yes, sir. Everyone, please. Okay. Yeah. फाइन सो ये अपने पास कंटेंट हो गया, जिस कंटेंट को हम कवर करेंगे अपनी इस 6 वीकेंड की ट्रेनिंग में। ए टू जेड जितने भी पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिखेंगे, लाइक एज अ प्री रिक्विजिट फॉर एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, सो वी विल डिस्कस अबाउट द प्री रिक्विजिट, लाइक द यूसेज ऑफ एज्योर पोर्टल, what is cloud cell, azure power cell, and how we can use CLI. So these all are the points that we will discuss in our training. एज यू रिसोर्स मैनेजर क्या होता है, रिसोर्स मैनेजर एंड टेम्पलेट्स क्या होते हैं. सो दीज पॉइंट्स वी विल कवर इन स्टार्टिंग. So let me proceed according to the agenda. But before that, to be a Azure administrator, it's our responsibility. We should know about the basic of cloud computing, right? So we should know about the what is cloud computing and how many types of cloud computing provider are available in market, and how we can manage the services related to the infrastructure, platform, and software as services. So can you please explain me what you think about the cloud computing? What is cloud, guys? Uh, so cloud is a delivery of compute services over the internet. Great. Anything else that we can add? And it is Cloud paid is a per. technology. Yes, please go ahead. Yeah. So cloud is a technology that we can access from anywhere, and also they provide services that we can use web. Okay, actually, some disturbance from your side. We are able to hear you properly. Can you please check your mic once? Yogesh, we are unable to hear you. Your phone volume is increased. Yogesh, can you please check your headphone, because we are unable to hear you properly. Lots of disturbance. Okay, everyone. So I hope all of you are able to see my screen. This is the agenda. In starting, we just need to cover these points, 6 points.
what is cloud computing, about the cloud components. We'll discuss about how to create a free trial account over our Azure portal, about the Azure subscriptions and Azure region and zone, and discuss about the resource group. So these all are the points that we need to cover before we start our practical part, because you can say that these all are the points we should know to before implement any services. बेस से स्टार्ट करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग से स्टार्ट करते हैं, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग कंपोनेंट and other services like free trial account. As per the name suggests, the meaning of compute services, right? Cloud computing. The meaning of cloud computing, it will provide you online platform. Means they give us option to set up our resources using online portal. A number of cloud providers are available, but you know that the cloud computing categorized in two different parts. Mainly, the cloud computing is categorized in two different parts: public, private, hybrid, and multi-cloud. Basically, these all are the part of our cloud computing. We'll discuss about the cloud providers as well. So the cloud computing provided by we have option to manage our public cloud. We can establish hybrid cloud. Another option that we can use private cloud, and we have option to manage the multi-cloud as well. So these all are the types of cloud computing. As a Azure administrator, it's our responsibility. We should know about the difference between public, private, hybrid, and multi-cloud. Public cloud से start करते हैं. We should know about the usage of public cloud. So let me explain you about the provider. जो public cloud provider हैं, उनके name के बारे में जान लेते हैं. AWS is a core public cloud provider. Azure, core public cloud provider. GCP, you know about the Google Cloud Platform, and Alibaba. These all are the core public cloud provider. Even अगर हम private की बात करें, तो yes, AWS and Azure can give us option to set up our private cloud. But the core private cloud providers are, you can say that, IBM and VMware also provide us a private cloud facility. If we talk about government, so NIC also establish our cloud. Oracle can also give us option to manage the services, but these all are considered as a core private cloud. Sir, Talk about owning a data center means that that is private cloud or the sorry, which one? Which one? that suppose the organization own have a data center, and is that mean on top of that they would need to install stack, right? That VMware stack or Azure stack, then they Mhm. can offer the private cloud, right? No, no, no. It's not considered as a private cloud. You can say that it's a type of virtualization. So When we OpenStack and Azure Stack, it is that the portal, right? Then only they can provide the cloud services. right, you have option to access your portal from anywhere. It considered as a inventory. If you set up your hardware within the organization and you are trying to manage the services with the help of VMware, vSphere, consider as a virtualization. But if you access the same setup from outside the network environment or from web browser, so definitely you can consider it as a private cloud. Got it, sir. Clear? Yes, Now, sir. about the hybrid cloud, as per the name suggests, the meaning of hybrid cloud, it's a combination of, right? You can say that collection of public cloud and private cloud. The combination of public and private considered as a hybrid cloud. कुछ सर्विसेज आपने AWS से ग्रैब कर ली, कुछ सर्विसेज आपने IBM से उठा ली या VMware से सेटअप लगा दिया या Oracle के थ्रू आपने कॉम्बिनेशन क्रिएट किया, तो which is considered as a hybrid cloud. Multi-cloud. Let's talk about the multi-cloud. The meaning of multi-cloud considered as a public cloud plus private cloud plus hybrid cloud, and you also need to involve the option of
on premises. The combination of all considered as a multi-cloud. Is that okay, guys, about the difference between public, private, hybrid, and multi-cloud? Any question? So multi-cloud, sir, we have doubt how the environment will set up multi-cloud. Okay. So, Okay. yeah. The meaning, the work of multi-cloud in the sense, like you establish your on-premises Active Directory services, right? You establish on-premises Active Directory domain services, and you want to synchronize the user from on-premises AD to Azure AD or AWS directory services. Means you are making a communication between on-premises hardware to Azure services, considered as a multi-cloud. Clear? Yes, that means the same setup like the organization having their on premises and they want to merge some sort of services they want to offering from the cloud, and if they want to access that, that is called multi cloud. Is that meaning? Correct, correct. In other words, you can also say that. In other words, you can also say that it's a type of hybrid setup. जब आप hybrid setup environment में create करते हैं ना, which is considered as a multi-cloud. Okay. On-premises के resources plus cloud के resources दोनों को आप communicate कर रहे हैं. You establish a data center on on-premises, but from on-premises data center, you want to distribute your Azure virtual machine or AWS virtual machine. So you are making a hybrid setup. So hybrid Sir, setup as sorry for the yeah, interruption, sir. As our data, the disaster recovery, our DR site is located in Azure, and our correct. we are offering from the on premises our primary services. That means that is also we can give an example of multi cloud, right? Multi-cloud, or you can say that it's a type of hybrid environment. Correct, sir. Thank you, sir. Got it. Because we have a chapter to take the backup of our on-premises. If you want to create a backup of your on-premises data file, virtual machine, physical machine, और उसका backup आप Azure portal पे रखना चाहते हैं, तो we have option to manage it in the recovery service vault. By using the recovery service vault, we will take the backup of our on-premises resources, या backup आप बोल सकते हैं, replication बोल सकते हैं, दोनों, या disaster recovery, we have option to do that, जो कि इस particular chapter में हम complete करेंगे. Guys, what about other? Please confirm, because it's really important. It's not mandatory to work over Azure portal if you want to be expert in AWS and Google Cloud. So you should know about the basic understanding of cloud computing. So if everything is okay, please confirm. Can we proceed? Do you have any question? Yes, sir. It's good. Yes, it's clear, sir. Okay, great. We can This is the proceed. very basic understanding of cloud computing. Now let me explain you about the important components of our cloud computing. So next topic is components. Yes, it's a type of components of cloud computing. So you can say that the main pillar of cloud computing categorized in three different parts. I hope you all of you are aware about. I'm talking about the infrastructure as a services, platform as a services, and software as a services, right? So it's our responsibility, we should know about the difference between these pillars or these components. Infrastructure as a services, as per the name suggests, infrastructure as a services को हम बोलते हैं manageable service. Okay, we can say that it's a type of manageable services. Sorry. And प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज को बोलते हैं अनमैनेजेबल. ओके, इसको हम बोलते हैं अनमैनेजेबल सर्विसेज. लेट मी एक्सप्लेन यू मोर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज. N number of options are available in infrastructure as a services, like as virtual machine. Whenever we create VM, consider as a infrastructure. If you set up a storage, it's a part of infrastructure. Networking, part of infrastructure. Okay, and database, if you want to set up a virtual machine for SQL, Oracle, or Postgres, any database, consider as a you can say that infrastructure as a services. What exactly happen in case of infrastructure?
The meaning of manageable service means 75% activity user can perform by self and only 25% task managed by the provider. Provider in the sense I am talking about the Azure provider या फिर AWS provider. जो टास्क होगा वो 75% यूजर खुद से मैनेज करेगा. ओनली द 25% एक्टिविटी मैनेज बाय द प्रोवाइडर जिसने हमारे सेटअप को होस्ट किया है, पोर्टल को होस्ट किया है. वी हैव एन नंबर ऑफ एग्जांपल. एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, वीएम क्रिएट की with capacity of 4 gig of RAM. Okay, you created VM with capacity of 4 gig RAM, 2 core of processor and 120 gig of hard drive. Is that clear, guys? Please confirm if you understand about the configuration. ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. 4 gig RAM, 2 core processor, 120 gig of hard drive, and any operating system, Linux machine, Ubuntu machine, or Windows operating system. But after 10 days, you realize the configuration not enough to handle our application. ठीक है, 10 दिन बाद आपको लगता है नहीं 4 जीबी से हमारे जो एप्लीकेशन हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, 2 कोर प्रोसेसर में हमारा काम नहीं होने वाला, 120 गिग हार्ड डिस्क में हम अपना डेटा सेव नहीं कर पा रहे हैं. इट मीन्स दैट यू नीड टू मॉडिफाई इट. आपको इसको इंक्रीज करना पड़ेगा. So whenever you increase or decrease the configuration of virtual machine, user अपनी तरफ से changes करेगा. Means you are responsible to change 4 gig RAM to 8 gig, change your processor from 2 core to 4 core, या फिर 120 GB की जगह पे 500 GB जो हार्ड डिस्क आपको ऐड करनी है ना, you are responsible to manage it. आपको मैनुअली टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा इन सभी कॉन्फ़िगरेशन को रिप्लेस करने के लिए, इन कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए. Got it what I'm saying? Yes, sir. What about other? I'm unable to get other people. Priyanath, Anusha, Rohan. Yes, sir. Understood. These are the Correct, part correct. of infrastructure as a service, right? इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स आप उसमें खुद से चेंजेस कर पाओगे. द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आप खुद से चेंजेस कर पाएंगे ना. Okay. यू हैव अ फुल राइट्स मीन 75% टास्क आपको अपनी तरफ से मैनेज करना पड़ेगा. पोर्टल आपको सिर्फ 25% एक्टिविटी परफॉर्म करने का ऑफर देगा, बाकी सभी एक्टिविटी आप खुद से मैनेज करोगे. क्लियर Sure. गाइस? प्लीज कंफर्म. मयूर. Yes, sir. Clear. It's clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. ग्रेट. नाउ सो अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज विद एग्जांपल, विद टेक्निकल एग्जांपल. सो यू कैन डिस्क्राइब the infrastructure as a services considered as a manageable services because in this case user means user who responsible to manage the portal, user responsible to manage each and every activity of our resources. The examples of our infrastructure as a services are VMs, storage, networking, SQL database. These all are the best example of infrastructure as a services. And in case of infrastructure as a services, we have already discussed 75% task user perform करता है और 25% task जो है हमारा provider perform करता है. Is it okay? सर 25% जो सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं, सो उसके अंदर कौन सा सर्विसेज आता है? Okay, so service provider can give us, service provider की बात करें, यहाँ पे हम Azure की बात कर रहे हैं, तो Azure responsible to provide up to 3600 services. Azure portal पे हमें 3600 services के आसपास मिलती हैं. Okay, and these services are categorized in 3 different part. इंफ्रा में कुछ को डिवाइड कर दिया गया, कुछ को प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में डिवाइड कर दिया और कुछ को सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में डिवाइड कर दिया गया. एज ए क्लाउड एडमिन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे, कौन सी सर्विसेज प्लेटफॉर्म में जाएंगी और कौन सी सर्विसेज हमारी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में काउंट होंगे. इज दैट ओके? यस. सी अभी धीरे धीरे इस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि यू नो दैट कि माइक्रोसॉफ्ट जो है
स्पेशली एज्योर पोर्टल की बात करें तो एज्योर पोर्टल पे ही सिर्फ एज्योर पे अपने पास 14 डिफरेंट सर्टिफिकेशन है। 14 अलग अलग सर्टिफिकेशन है। ये सभी सर्टिफिकेशन आपकी 3600 सर्विसेज को कवर करते हैं। Azure Administrator, Azure Architect, Azure Fundamental, Azure Security, Azure DevOps, Azure Database, Azure Automate Engineer, like n number of options are available, n number of certification are available. क्लियर? तो हम जो पॉइंट पे हैं, मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर के जो पार्ट में है, तो एडमिनिस्ट्रेटर के पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि जो एडमिन से रिलेटेड टास्क होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की और दूसरा आर्किटेक्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है नाउअडेज। सो इफ यू प्रेजेंट योर सेल्फ एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसके लिए बहुत सारी सर्विसेज हमें आनी चाहिए, जो कि 5 मॉड्यूल में कैटेगराइज किया गया है, उन्हीं पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? जी सर। Okay, so if everything is okay about the infrastructure as a services, can we proceed for platform as a services? Hello. Yes sir. Sure, sir. Yes sir. Okay, so as we discussed, manageable services and unmanageable services. Unmanageable services in the sense just opposite of our infrastructure as a services. Because इसमें क्या होता है ना, 75% टास्क मैनेज बाय प्रोवाइडर, आप यहाँ पे प्रोवाइडर मेंशन कर देंगे, एंड 25% एक्टिविटी मैनेज बाय अस, यानी यूजर, यू एंड मी रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज अप टू 25% टास्क। क्वेश्चन, व्हाट आर द एग्जांपल? तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। वेब ऐप, Azure SQL, not a single SQL, Azure SQL, load balancer, CDN, these all are the services considered as a platform as a services. 75% task managed by the provider, 25% task managed by the user. Means इसमें जो work होता है ना, let me explain with example. For example, you want to host one website, आपको एक वेबसाइट होस्ट करनी है, डॉट नेट की, पीएचपी की, जावा की, एचटीएमएल की, किसी भी एक वेबसाइट को आपको होस्ट करनी है। सो आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट कि कैसे होस्ट की जाती है। एक तो तरीका ये है कि आप अपना खुद का सर्वर क्रिएट करो, यू जस्ट नीड टू इस्टेब्लिश योर ऑन सर्वर। मीन्स लिनक्स पे जाएंगे तो अपाचे सर्वर की जरूरत पड़ेगी, विंडोज पे जाएंगे तो इंटरनेट IIS. इंफॉर्मेशन सर्विसेज आईएएस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक तो तरीका ये है कि आपने अपना खुद का हार्डवेयर खरीदा, हार्ड सर्वर खरीदा, डेडिकेटेड आईपी परचेज की, पब्लिक डेडिकेटेड आईपी परचेज की, डोमेन परचेज किया और अपने वेबसाइट को होस्ट कर दिया अपने खुद के सर्वर पे। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि आप godaddy.com से कांटेक्ट कर लिए, बिग रॉक से कांटेक्ट कर लिया, होस्ट गेटर से कांटेक्ट कर लिया। ये कुछ पॉपुलर होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनियां हैं जो डोमेन के साथ साथ हमारी होस्टिंग भी प्रोवाइड करती हैं। होस्टिंग प्रोवाइड इन द सेंस कि आपको सिर्फ डेटा अपलोड करना है, जो भी पीएचपी या डॉट नेट की फाइल है ना, आपको सिर्फ अपलोड कर देना है, बाकी का काम इनके सर्वर्स बैकएंड से कर देते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें आपको हार्डवेयर का एक्सेस नहीं मिलता, आपको सिर्फ कंट्रोल पैनल मिलता है, जिसको हम सी पैनल के नाम से जानते हैं। इज दैट करेक्ट? Correct, sir. So whenever you set up your own server,
ऑन वेब सर्वर, जब आप अपना खुद का वेब सर्वर सेटअप करते हो, उस केस में यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ईच एंड एवरी पॉइंट। अगर आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के थ्रू होस्ट करेंगे ना, सो व्हाट यू नीड टू डू, पहले स्टेप में आपको वीएम क्रिएट करना पड़ेगा। वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ वीएम, इट मे बी लिनक्स आर विंडोज। Then install IIS or Apache, then upload data, then fix public IP address and plus add domain। इतना सारा टास्क आपको मैनुअली परफॉर्म करना पड़ेगा, because you are using infrastructure as a services, so each and every point configure by you। जितने भी टास्क हैं वो आपको खुद से कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। बट इफ यू प्रोसीड विद इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, सेम HTML की फाइल या .NET की वेबसाइट अगर आपको होस्ट करनी है ना, using the platform as a services, so what you need to do, you just need to create Azure web app। ठीक है, आप यहाँ पे वेब ऐप कॉन्फ़िगर करेंगे, सेलेक्ट द प्लान एंड अपलोड योर HTML डेटा। जो भी आपका HTML का डेटा है, वेबसाइट है, .NET की वेबसाइट है, आपको वो सिर्फ और सिर्फ FTP के जरिए, फाइलजिला के जरिए इसको अपलोड कर देना है। Within 10 मिनट यू आर एबल टू एक्सेस योर वेबसाइट फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। आपकी जो वेबसाइट है विदिन 10 मिनट लाइव हो जाएगी। एंड इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, इस टास्क को करने के लिए 4 to 6 आवर्स लगते हैं कंप्लीट लाइव होने में। सर और एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए वो। ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, दोनों के बीच में गैप समझने की कोशिश कर रहे हैं। So infrastructure as a services means you are responsible to manage each and every point from scratch। आपको कोई भी रिजल्ट चाहिए तो सारा टास्क आपको खुद से परफॉर्म करना पड़ेगा। प्रोवाइडर सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, उसके अंदर की चीजों को मैनेज करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के केस में सब कुछ बना बनाया रहेगा, हमें सिर्फ उसका प्लान सेलेक्ट करना है, लाइसेंस सेलेक्ट करना है एंड अपलोड आवर पर्सनल डेटा, दैट्स इट, and we are able to access from anywhere। So Network this, thing Sir, also we have to manage. sorry, Network thing also we have to manage if we are using PaaS. 100% we are responsible to manage networking, every point of networking, VPN, gateway, subnet, we are responsible to manage manually। this is about infrastructure as a service. Exactly, because the part of infrastructure as a services, is it okay? Yes. Okay, चलो एक And, छोटा सा एग्जांपल, या प्लीज। sir, so एक क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में सपोज मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है, नाउ पैचिंग रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, प्रोवाइडर की Azure या will, यूजर की? Azure will provide you, we ओके, have options, see, Azure will provide you one option, ठीक है, ओके, consider as a update manager। Azure ओके, पोर्टल पे एक आपको अलग से सर्विस मिलेगी विद नेम ऑफ अपडेट मैनेजर। द अपडेट मैनेजर कैन हेल्प यू टू इंस्टॉल लेटेस्ट पैचेस। इट वर्क जस्ट लाइक SCCM सर्वर। ओके, SCCM क्या करता है, मल्टीपल सर्वर हमारे पास सिस्टम है, क्लाइंट हैं, उनको पैचिंग देने के लिए हमें एक SCCM लगा लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एंड SCCM सर्वर टू एग्जीक्यूट द लेटेस्ट पैचेस। एज इट इज Azure पोर्टल पे भी हमें अपडेट मैनेजर के थ्रू मल्टीपल सर्वर में अपडेट कर सकते हैं। क्लियर? और सिक्योरिटी हार्डनिंग वगैरह प्रोवाइडर करेगा या यूजर करेगा? No, the security management portal responsible to provide you security। अगर ओके, हम इनके SLA की बात करें ना, Azure के SLA की बात करें, क्लाउड प्रोवाइडर की, तो Azure offer us without any failover 95.99% of fault tolerance। ओके, बिना किसी फेलोवर के अगर आप जाते हैं ना किसी भी सर्विस पे, VM हो गया, स्टोरेज हो गया, या नेटवर्किंग हो गई, इसकी जो अप टाइम की कैपेसिटी है ना, वो 95.99% है। ह्यूज मीन्स 1000 डे में, 1000 दिन में हो सकता है कि एक दिन आपका सर्वर डाउन होने के लिए एज यू रिक्वेस्ट करे।
ओके। इफ यू वांट टू इंक्रीज इट, आप अपनी तरफ से फेल ओवर लगाइए, एडिशनल चार्जेस पड़ेंगे, बट आप इस फॉल्ट टॉलरेंस को यहाँ से लेकर के 99.999% तक फॉल्ट टॉलरेंस इसका इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब ये 10 लाख दिन में एक दिन के लिए आपको अपना सर्वर डाउन रखना पड़ेगा। यूज 10 लाख डेज में आपको एक दिन सर्वर डाउन करना पड़ेगा। 99.999 5 टाइम 9% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। ये सभी पॉइंट हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। अभी सर आपने एक क्वेश्चन, वी विल डिस्कस अबाउट इट प्रैक्टिकली। या सॉरी, सर अगर मेरा ACCM का सब्सक्रिप्शन मेरे मेरे पास है और मैंने लाइसेंस लिया हुआ है फॉर पैचिंग, सो हाँ हाँ, अगर वो तो वेस्ट हो जाएगा ना, सो नहीं नहीं सो नहीं नहीं, लेट मी इज देयर एनी एक्सप्लेन वेरी स्कोप गुड। लाइक? Yes, 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 yes. Let me explain you. Azure portal can give us option of BY, sorry, BYOL. Azure will give us option of BYOL plus 50% discount. Got it? What I'm saying? मतलब ये bring your own license, ठीक है? Bring your own license. It's not mandatory कि केवल SCCM की हम बात कर रहे हैं। अगर आपने विंडोज 10 का भी लाइसेंस परचेज किया है, विंडोज 8 का भी लाइसेंस परचेज किया है ऑन प्रोमाइसिस पे, तो आप वो लाइसेंस वेस्ट नहीं जाएगा। सेम लाइसेंस आप एज्योर पे यूज कर लीजिए। और अगर आप अपना खुद का लाइसेंस एज्योर को देते हैं ना, तो एज्योर आपको 50% का डिस्काउंट देगा इमीडिएटली। एससीसीएम का आपने अ, एक लाइसेंस परचेज किया, ठीक है, एंड यू वांटेड टू यूटिलाइज योर एससीसीएम सर्विस ओवर एज्योर पोर्टल, तो आप BYOL यूज करिए, अपना लाइसेंस एज्योर पोर्टल पे यूटिलाइज करिए वर्चुअल मशीन में। और जो भी वर्चुअल मशीन की कॉस्ट होगी, अगर आप इसका 10 रुपीज पर आवर दे रहे हैं ना, तो इसकी कॉस्ट आपका लाइसेंस लगने के बाद 5 रुपए पर आवर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर। इन मतलब इन आप लाइसेंस के लिए नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वर्चुअल मशीन के लिए दे रहे हैं वो वाला? आप हार्डवेयर के लिए दे रहे हैं, लाइसेंस आपका है, ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक आपका है, है, लाइसेंस गॉट इट आपका है, गॉट इट। केवल हार्डवेयर, हार्डवेयर का आपको केवल देना पड़ेगा, बस दैट्स इट। सही है। क्लियर? टेक्निकल वर्ड में इसको बोला जाता है हाइब्रिड बेनिफिट्स। टेक्निकल वर्ड में इसको बोलते हैं हाइब्रिड बेनिफिट्स, ठीक है? या फिर आप बोल दो BYOL के थ्रू हम कंपनी का जो लाइसेंस है, एग्जिस्टिंग ऑन प्रोमाइसेस का लाइसेंस है, उसको हम एज्यूर पोर्टल पे यूटिलाइज कर लेंगे। चलो, लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं, because it's really important for us, we must need to know about the gap between both. Let's take an example of pizza. So you know that pizza के लिए we have a two different option. एक तो ये है, I'm talking about the infrastructure first. पिज्जा का एग्जांपल लेकर देखते हैं कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज कैसे काम करता है रियल इन्वायरमेंट में। पिज्जा के केस में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं पिज्जा को खुद डिजाइन करने, क्रिएट करने के लिए, खुद बनाने के लिए। आपको डो बनाने हैं, आपको उसमें जो वेजीज हैं वो आपको अरेंज करनी है, चीज आपको अरेंज करनी है, ठीक है, बेक आपको करना है, A to Z टास्क आप खुद से परफॉर्म कर रहे हो, बिकॉज इट्स अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। दूसरा ऑप्शन है अपने पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। आपने कॉल किया या मोबाइल पे डोमिनोज का ऐप डाउनलोड किया, विद इन मिनट आपने ऑर्डर किया, विद इन 30 मिनट और 1 आवर आपके पास अवेलेबल हो गया। आई डोंट थिंक इसमें हमारा कुछ एफर्ट लगा, सिर्फ हमने ऐप ओपन किया और फ्लेवर सेलेक्ट किया एंड देन ऑर्डर, दैट्स इट। इज दैट करेक्ट? सो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज इज जस्ट लाइक आपने ऑर्डर किया और आपके पास वो सारा सामान, जो जो भी मटेरियल आपने ऑर्डर किया, वो आपको इमीडिएट मिल जाएगा। आपको कोई भी अपनी तरफ से एफर्ट देने की जरूरत नहीं है कि आप उसका डो भी बना रहे हो, आपको उसके बेसिस बना रहे हो, चीज उसमें आप इन्वॉल्व कर रहे हो, ऐसा कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सी अपने पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज मीन बनी बनाई सर्विसेज है। आप बस ऑर्डर करो कि आपको कौन सा पैकेज चाहिए, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कितना खर्च करना चाहते हैं। दिस इज द एक्चुअल गैप बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज।
Is that clear, guys? Please confirm because it's a backbone of our cloud technology. सिर्फ एज्यूर के लिए नहीं, आप AWS के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करो, गूगल क्लाउड के लिए भी प्रिपेयर करो। अगर हमारा क्लाइंट या हमारा मैनेजर कहता है कि AWS पे सर्विसेज कैसी होती है, तो इन्हीं को आप, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट हम कवर कर रहे हैं, ये सारी थ्योरी आप AWS और गूगल क्लाउड के लिए भी यूज करेंगे, बिकॉज ये कॉमन है। क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विसेज उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग हो सकता है, बट ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये डिफरेंट नहीं होगा, ये हर जगह ऐसे यूटिलाइज करेंगे। इज इट फाइन? सर आईएएस और पैस में बेसिक डिफरेंस जो है, जैसा आपने बताया कि वीएम पैस के अंडर नहीं आएगा, वीएम आईएएस के अंडर आएगा, और पैस के अंडर ऐप वेब, एजूर एसक्यूएल, लोड बैलेंसर, लाइक मेजॉरिटी ऑफ चीजें प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा, और 25% यूजर हैंडल करेगा। एग्जैक्टली करेक्ट? यस। करेक्ट। जस्ट लाइक है, डोमिनोज से आप पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, 75% उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसमें क्या मेंशन करना है उसको, ठीक है, कैसे कितना बेक करना है, उसकी हेडेक है। हमें सिर्फ अपने ऐप को ओपन करना है, सेलेक्ट करना है, पेमेंट करना है, दैट्स इट। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आप घर पे ही पिज्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इट मीन्स दैट सारी चीजें आपको खुद से अरेंज करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? यस सर। ग्रेट। सो आई होप कि इन दोनों के बीच में गैप, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के बीच में गैप समझ में आ गया हो गया। प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। Priyanath, Mayur, Anusha, any question? No, sir, नो it's सर, clear. No, ऑल sir. क्लियर। Great. So can we proceed for SAS? Sure. Yes. Software as a services, right? SAS. The meaning of software as a services, as per the name suggests, software as a services. We have a number of examples to understand about the SAS. In case of SAS, we are unable to create any resources. The best examples are for SAS. Guys, I hope all of you have idea about the Office 365. Please confirm. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes. What about WordPress, Not that much. WP, WordPress? Yeah, hosting application, I guess. And it's not an application, it's a type of server. Okay. Without language, without code, we are able to design our website. Correct? Oh, yes, 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 Correct? OTT platforms, yes. Netflix, Amazon, right? Hotstar, Z5. These all are the examples of SAS, software as a services. Actually, Salesforce what and happens? Gmail. Yep, you can say that. Gmail is also a type of software as a services. The mailing services, the public mailing services also considered as a software as a services. Now let's talk about how it works. Like as in this case, if we talk about Office 365, so Office 365 क्या करता है? Office 365 is a type of platform जहाँ पे हम अपनी मेलिंग सर्विसेज को मैनेज करते हैं, अपने एम्प्लॉयर्स के लिए ईमेल आईडीज तैयार करना, उनके लिए टीम्स डिजाइन करना, उनके लिए शेयर पॉइंट बनाना, उनके लिए वन ड्राइव शेयर करना, मीन्स बहुत सारी सर्विसेज आपको ऑफिस 365 पे मिल जाती है। बट जस्ट वांटेड टू आस्क, आर वी एबल टू क्रिएट एनी रिसोर्सेज ओवर ऑफिस 365 पोर्टल? क्या हम कोई वर्चुअल मशीन ऑफिस 365 पोर्टल पे क्रिएट कर लेते हैं?
नहीं सर। No. कोई हार्डवेयर हम वहां से परचेज, कोई भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगर कर पाते हैं? No, sir. नहीं, बस यूज करते हैं उसको, जो एप्लीकेशन को। मीन्स हमने पोर्टल ओपन किया, राइट, एंड पोर्टल ओपन करने के बाद यू मस्ट नीड टू परचेज द सब्सक्रिप्शन या फिर लाइसेंस बोल सकते हो. आफ्टर सब्सक्रिप्शन और लाइसेंस वी आर एबल टू यूज द सर्विसेज. ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हम साइन अप कर सकते हैं विद इन सेकेंड. अपने कॉन्टैक्ट नंबर से अपनी मेल आईडी के थ्रू हमने नेटफ्लिक्स पे लॉगिन कर लिया, राइट, अमेजन प्राइम पे लॉगिन कर लिया, हॉटस्टार पे लॉगिन कर लिया. बट आपको उनके प्रोडक्ट तभी मिलेंगे, उनकी सर्विसेज तभी मिलेगी जब आप उनको और जब आप उनका लाइसेंस परचेज करोगे. इज दैट क्लियर? जब आप उनका सब्सक्रिप्शन परचेज करोगे. तो जितनी भी सर्विसेज मोस्टली आपकी लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन बेस्ड होती हैं, these all are the services considered as a software as a services. No need to implement any hardware, and we just need to set up our environment, and we need to sign up ourselves, purchase a subscription or license, and proceed to manage our resources. Is that correct? Means जो सारी चीजें रहेंगी वो प्रोवाइडर की रहेगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रहेगी कि हमें एक लाइसेंस खरीदना है और उस लाइसेंस में जो चीजें इंप्लीमेंट करनी है वो हमें इंप्लीमेंट करनी है. इज दैट फाइन? Everyone, Yes, please sir. confirm about these points that we discussed. Like अभी हम यहाँ पे हैं, अभी हमने केवल दो पॉइंट डिस्कस किए हैं, compute services and component, right? Next we'll discuss about the create free trial account. But before that, please confirm कि आप अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है वो सारी चीजें आपके क्लियर है, उनमें से कोई क्वेश्चन या कोई डाउट नहीं है. प्लीज कंफर्म. Clear है sir? नो सर, क्लियर। ग्रेट. लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट फ्री ट्रायल अकाउंट. ठीक है, एज्योर पोर्टल पे हम अपना अकाउंट कैसे तैयार करते हैं. वेरी सिंपल ऑप्शन. Configure or create free trial account. Free trial account on Azure. So what you need to do, you just need to type https. कोई भी ब्राउजर ओपन करिए, यहाँ पे आपको टाइप करना है portal.azure.com. This is the URL for Azure portal. AWS के लिए अलग है, GCP के लिए अलग है, Alibaba क्लाउड के लिए अलग है. portal.azure.com, this is the URL. आपने क्या करना है अपनी तरफ से? You must need to use your mail ID. You should use your contact number, and if you are using free trial, then you can proceed with debit card or credit card. ये free trial के लिए. This is the prerequisite that can help us to create our subscription. Now, question. How many types of subscriptions are available? It's mandatory to know. First, free trial subscription. Second, pay as you go. And third one is MSDN. ठीक है, MSDN. And then Azure passes, आपने नाम सुना होगा, Azure passes मिल जाते हैं हमें. So these all are the types of subscription. If we talk about free trial, so free trial is applicable or valid for 30 days, and Azure will provide you 14,500 rupees as a credit amount, or you can say that $200 to use the services. But the validity of 14,500 या $200 for 30 days, ये 30 दिन के लिए वैलिड रहेगा बस. Pay as you go, pay as per
यूसेज, जितना आप यूसेज करेंगे इसका, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा। MSDN क्या होता है? MSDN इज अप्लीकेबल फॉर MCT, ठीक है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हैं तो आपको एज्योर $100 देगा हर महीने, अप टू 12 मंथ, ठीक है। 12 महीने तक, पूरे साल तक आपको $100 मिलता रहेगा, हर महीने $100 आपको मिलता रहेगा। सर MSDN का फुल फॉर्म क्या है? MSDN माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क करके है, यस नेटवर्क। And Azure passes available in different category, like it is valid for $100 and you can use it for 30 days. $100 for 30 days. सर ये MSDN को लेकर एक डाउट है मुझे। हमारे ऑफिस में जब कोई विजुअल स्टूडियो वगैरह यूज़ करते थे या फिर कोई एप्लीकेशन यूज़ करते थे, तो लाइक अगर वो यूज़ नहीं कर पाते, कोई इशू आ जाता, तो हम बोल देते कि अगर MSDN लाइसेंस अलोकेटेड नहीं है इसलिए आपका वो नहीं चल रहा है। सो इन दैट केस हाउ टू रिलेट दिस थिंग इन इट? Actually, MSDN license जो authorize होता है ना, MSDN license can give us a n number of co-licenses. With the help of, अगर आपके पास MSDN लाइसेंस है तो आप Azure सर्विसेज के साथ साथ Intune की सर्विस को यूज करते हैं, आप विजुअल स्टूडियो की सर्विस को यूज कर सकते हैं, एंड द लाइसेंस अवेलेबल इन MSDN। और भी सर्विसेज हैं जो डिजाइन के लिए एक यूज होती है, आई फॉरगेट द नेम, उस सर्विसेज को भी यूज कर सकते हैं। पावर करके आता है, पावर समथिंग करके एक टूल है जिसके थ्रू स्ट्रक्चर वगैरह डिजाइन करते हैं। PPT का अपडेटेड वर्जन है, उन सभी का लाइसेंस आपको MSDN में मिल जाता है। अच्छा, मतलब MSDN लाइसेंस हो तो हम मल्टीपल जो है सर्विसेज वो यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली, यस। ओके। MSDN इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लाइसेंसेस। इसका सिर्फ इतना काम नहीं कि Azure की सर्विसेज को हैंडल करें। With the help of MSDN subscription, you are able to use different services based on different licenses. Clear? ऑर्गेनाइजेशन सर कौन सा लेता है, पे एज यू गो और के कौन सा, मतलब जैसे अगर कंपनी वगैरह जो हम जो भी यूज करेंगे, मतलब कॉर्पोरेट में, वहाँ पर कौन सा लाइसेंस होगा मतलब? ओके, अगर आपकी कंपनी का कोऑर्डिनेशन माइक्रोसॉफ्ट से बहुत अच्छा है ना, जो कि अभी इनका यू कैन से दैट माइक्रोसॉफ्ट क्या हर एक क्लाउड प्रोवाइडर अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं मार्केट में, एक तरीके से पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज्यादातर आपको मिलेगा MSDN, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बल्क में आपको पेमेंट मिल जाती है आपकी कंपनी को, ठीक है। और पे एज यू गो, ये दो लाइसेंसेस आपको मिलेंगे काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप HCL में काम करते हो, ठीक है, यू नो दैट HCL बहुत बड़ी फर्म है। सो इस केस में माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है ना, कि क्योंकि HCL ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत साल से 2500 साल से यूटिलाइज कर रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट में माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर क्या करता है, आपको $25,000 आपको क्रेडिट दे दिया 12 मंथ के लिए विद MSDN सब्सक्रिप्शन, ठीक है। देखिए ये इतना अमाउंट इसलिए दे रहा है कि एटलीस्ट आप सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करके चेक कर सको कि एज्यूर जो है काफी सेफ है, सिक्योर है, फेल ओवर उसका जो डाउन टाइम है वो बहुत कम है, एंड प्लस मेंटेनेंस लो है और हमें लो मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। तो एक साल की टेस्टिंग के लिए $25,000 आपको दे दिया MSDN अकाउंट के साथ साथ, बट उसके बाद आप सर्विसेज रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने $25,000 का की सर्विसेज परचेज किए हैं तो डेफिनेटली उसको आप रन कराना चाहते हैं। तो अगले साल से मीन्स नेक्स्ट जब से ये आपका खत्म हो जाएगा MSDN, आपको पे एज यू गो में मूव करना होगा, देन एज यू विल चार्ज यू। ये स्ट्रेटेजीज है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है कि स्टार्टिंग में हम फ्री में दे देते हैं एक साल तक के लिए, कोई नहीं हमारा कस्टमर बन रहा है, बट उसके बाद हम चार्जेस स्टार्ट करेंगे।
सर उसमें से मैं ऐड करना चाहूँगा लाइक फ्री ट्रायल राइट, जैसे हमको क्रेडिट मिलता है अमेजन पे ऑल्सो क्रेडिट मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली जब हम 1 साल और 2 साल रन करेंगे तो पे एज यू, जब पेमेंट करना है तो पे एज यू गो पे जाके सब्सक्रिप्शन पे ही पेमेंट करेंगे। एग्जैक्टली, बाकी में आपको पेमेंट नहीं देना है, और सब्सक्रिप्शन हम चेंज नहीं कर पाते क्योंकि उससे बहुत सारी हमारी मशीनें जुड़ी रहती हैं या सर्विसेज जुड़ी रहती हैं। वी हैव ऑप्शन टू माइग्रेट इट, बट 2-3 मशीनें हैं तो उसको हम माइग्रेट कर देंगे एक सब्सक्रिप्शन से दूसरे सब्सक्रिप्शन पे। बट आपने बहुत सारी मशीन, 100+ सर्वर्स या फिर वेब सर्वर या डेटाबेस बना रखे हैं, इट्स रियली डिफिकल्ट टू माइग्रेट। तो बंदे क्या करते हैं, एमएसडीएन को ही अपग्रेड कर लेते हैं ताकि उनको सर्विस माइग्रेट ना करनी पड़े एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। करेक्ट? राइट सर। ठीक है। फ्री ट्रायल और एमएसडीएन में यही डिफरेंस है कि फ्री ट्रायल सबके लिए एलिजिबल है, आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड लगाना है, डेबिट कार्ड लगाना है, ये 14,500 अमाउंट आपको इमीडिएटली क्रेडिट हो जाएगा। बट एमएसडीएन के लिए कुछ प्री रिक्विजिट है, आप एमसीटी होंगे तब आपको मिलेगा, आप कोई फर्म के मालिक होंगे और आपका जो फर्म है वो माइक्रोसॉफ्ट से एसोसिएटेड होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट से। ठीक है, तब ये आपको एमएसडीएन मिलेगा। नॉर्मल स्टूडेंट के लिए एमएसडीएन नहीं है। नॉर्मल स्टूडेंट की केस में हम एजूर पासेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज जहाँ पे हम पढ़ते हैं, बीटेक कॉलेज हो गया या बीएससी कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गई, वो हमें असाइन करती हैं $100 जो है एजूर पासेस में, कि एटलीस्ट आप भी इसमें टास्क परफॉर्म कर सको विदाउट क्रेडिट डेबिट कार्ड। इज दैट क्लियर अबाउट सब्सक्रिप्शंस? यस सर। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एज्योर सब्सक्रिप्शन टाइप। तो अगर कोई इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पुट अप करता है, द टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, सो फ्री ट्रायल, पे एज यू गो, एमएसडीएन एंड एज्योर पासेस, ये 4 ऑप्शन है जिनका यूज करके हम एज्योर पे साइन अप कर सकते हैं। नाउ वी कंप्लीटेड सब्सक्रिप्शंस एज वेल। ये 4 पॉइंट हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन गाइस। One question, sir. Like, if we have this MSDN subscription and if we create few services based on that subscription, and once that subscription is ended, and if you go for pay as you go, then the services which you have created by using MSDN will be working, or there will be any issues? या सी, यू इफ यू वांट टू रन योर सर्विसेज, अगर आपको उन्हीं सर्विसेज को कंटिन्यू करना है तो 2 दिन पहले, 24 घंटे पहले, 6 घंटे पहले आपको एमएसडीएन के साथ साथ पे एज यू गो में सेम अकाउंट को कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपको कंटिन्यू रखना है उस सर्विस को तो हमें पे एज यू गो में कन्वर्ट करना होगा, एंड नेक्स्ट मंथ से आपकी जो सर्विसेज रहेंगे उनका बिल आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी कोई भी सर्विस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। Okay. क्लियर? सर एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल सब्सक्रिप्शन रहता है राइट, नॉट सिंगल। 100%, 100% यस। क्यों सर, एक में सारे रन नहीं कर सकते हम? नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप एक एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, यू आर वर्किंग एज ए कंसल्टेंट, एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू एचसीएल, आईबीएम एंड आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को, डेल, तीनों कंपनी को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। गॉट इट? या फिर जी। छोटा सा एग्जांपल, आप कंसल्टेंट हैं, मैं एक छोटा सा बिजनेस प्लान कर रहा हूँ कि मैं ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ इंडिया लोकेशन में, दिल्ली लोकेशन में। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माई ई कॉमर्स बिजनेस, और आई वांटेड टू होस्ट माय वेबसाइट यूजिंग एज्योर पोर्टल, ठीक है, बट आई डोंट नो अबाउट द एज्योर, मुझे नहीं पता एज्योर के बारे में, ठीक है। सो मैं आपसे जी। कोऑर्डिनेट करूंगा, आपको बोलूंगा कि आई एम प्लानिंग टू होस्ट माय वेबसाइट, कैन यू प्लीज हेल्प मी? आप बोलोगे ठीक है, आई एम एबल टू होस्ट योर वेबसाइट, ये चीजें मिलेगी आपको, ये सिक्योरिटी मिलेगी, ये स्पीड मिलेगी, ये चार्जेस आपको देना पड़ेगा। गॉट इट? जी। अब मेरे जैसे बहुत से बंदे आपसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप सबको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक अ टेक्निकल सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं, उसी तरीके से आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब छोटे छोटे कस्टमर को एक सब्सक्रिप्शन में मैनेज किया जा सकता है, बट अगर आप बड़े कस्टमर हैंडल कर रहे हो, आईबीएम को हैंडल कर रहे हो, एचसीएल को हैंडल कर रहे हो, डेल को हैंडल कर रहे हो, तो इट्स फॉर योर सेफ्टी, आपको हर एक क्लाइंट के लिए एक अलग सब्सक्रिप्शन रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप बिलिंग नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, आप सर्विसेज को मैनेज नहीं कर पाओगे,
एक ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट कर देंगी, सिक्योरिटी नहीं मैनेज कर पाएंगे। दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन अपने डिपार्टमेंट तक के लिए भी दूसरा सब्सक्रिप्शन परचेज करती है, ताकि दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन ना हो। दूसरा पोर्टल इसलिए नहीं क्रिएट करती क्योंकि अगर 5 क्लाइंट हैं तो 5 पोर्टल कौन देखेगा। इसी वजह से एक पोर्टल पे रहो और 5 सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो आप। इज दैट ठीक है। क्लियर? यस सर। आप इसको एग्जांपल में ले सकते हो, जैसे हम ऑन प्रोमाइसेस एडी पे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाते हैं ना, एज इट इज आप इसको सब्सक्रिप्शन जी। को मानिए। ओयू बनाते हैं ना डिपार्टमेंट के लिए, एच आर के लिए, सेल्स के लिए एंड अदर अदर डिपार्टमेंट के लिए, तो एज इट इज यहाँ पे आप इसको नहीं कंसीडर सर, करिए। अगर मैं थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा हूँ कि जैसे रिसोर्स मैनेजर हो गया, हम हाँ वहाँ पर तो नहीं गए हैं इसलिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि रिसोर्स मैनेजर पे तो हम सेग्रीगेट करते हैं ना, तो सब्सक्रिप्शन पे सेग्रीगेट सेग्रीगेट भी होता है वैसे, मतलब दैट इज बिट कंफ्यूजिंग। नो 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 नो, सी द क्वेश्चन इज कि दोनों के केस में होगा। सी, अगर आप एक डेल क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो तो डेल के पास भी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना। डेल पे हाँ भी सेल्स टीम है, एचआर टीम है, मार्केटिंग टीम है, आईटी के बंदे हैं, राइट। अब उन जी। सभी टीम्स के लिए आप रिसोर्स ग्रुप का इस्तेमाल कर लो, कंपनी के लिए आप सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल कर लो। जब हाँ आप अब पर्टिकुलर थोड़ा। कंपनी के डिपार्टमेंट को सेग्रीगेट करना चाहते हो तो सब रिसोर्स ग्रुप का इस्तेमाल करो। जब आप पूरी कंपनी को सेग्रीगेट करना चाहते हो तो आप सब्सक्रिप्शन यूज करो। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अभी हम आने वाले हैं उसी पॉइंट पे आने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि ये सभी के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में रियल इन्वायरमेंट में कैसे यूटिलाइज किया जाता है इसको। और एडी का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको बहुत सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे कि एडी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। सो इज दैट ओके अबाउट द सब्सक्रिप्शन? यस सर। ठीक है, सो आई होप कि ये 4 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए होंगे। सो कैन वी टेक अ जस्ट 10 मिनट ब्रेक एंड देन कनेक्ट अगेन। 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ब्रीथिंग ब्रेक, और फिर 10 मिनट में कनेक्ट करें। इज दैट फाइन? Sure, sir. Sure. चलो 10 मिनट ब्रेक ओके है, सर। I'm just going to add a timer ताकि आपको मालूम चलता रहे। Can you This hear me? conference will now be recorded. यस सर। Okay. Next, another important point, Azure region and zone. So ये जो region और zone का concept है ना, not only with Azure services, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं Azure सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप को छोड़ करके, ये सभी पॉइंट आपके हर एक क्लाउड के लिए अप्लीकेबल है। AWS आपको रीजन जोन का ऑप्शन देता है, गूगल क्लाउड आपको रीजन जोन का ऑप्शन देता है, अलीबाबा क्लाउड आपको रीजन जोन का ऑप्शन दिखाई देता है। एज ए Azure admin, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड नो अबाउट द यूसेज। हमें इनके यूसेज के बारे में मालूम होना चाहिए। सो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड जोन। Azure region and zones. For example, ये ग्लोब है अपना। Azure established multiple region and multiple zone. तो we should know about the difference कि रीजन क्या है और zones क्या है। ठीक है, सर स्क्रीन शेयर नंबर्स। नहीं है। सर, आर यू शेयरिंग योर स्क्रीन? सॉरी 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 सॉरी, now is it visible now? यस सर। यस सर। ठीक है, now we have a two important points, one is region और दूसरा है अपने पास zones। ठीक है, सो रीजन, फॉर एग्जाम्पल एक रीजन है अपने पास, जस्ट जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, एपी।
एशिया पैसिफिक, ओके। सो एशिया पैसिफिक क्या कहलाएगा हमारा, रीजन कहलाएगा, बट अंडर द एशिया पैसिफिक वी हैव अ सेंट्रल इंडिया, ठीक है, वी हैव अ सेंट्रल जापान, वी हैव अ ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया। जो ये छोटे छोटे डेटा सेंटर्स है ना, ये जो फिजिकल डेटा सेंटर है, फिजिकल डेटा सेंटर आर कंसीडर, the physical data centers are considered as a zones। जो फिजिकल डेटा सेंटर हैं उनको हम जोन के नाम से जानते हैं। जो रीजियन है इज अ कलेक्शन ऑफ जोन्स। जो जो रीजन है, इसका मतलब एक रीजन के अंदर मल्टीपल जोन्स हो सकते हैं। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग गाइस? प्लीज कंफर्म अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रीजियन एंड जोन। यस सर। सो जोन्स के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर भी हो सकते हैं ना, या एक ही डेटा सेंटर होगा? नो नो नो, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? सो जोन्स के अंदर हाँ, वन डेटा सेंटर ही होगा, या फिर मल्टीपल डेटा सेंटर हो सकते हैं? नहीं, मल्टीपल डेटा सेंटर एक ही रहेगा, हम्म। मल्टीपल होस्ट हो सकते हैं। ओके। एक पूरे जोन को अगर आपने यहाँ पे सेंट्रल यूएस सेलेक्ट किया, ठीक है, सेंट्रल यूएस सेलेक्ट किया, तो सेंट्रल यूएस अपने आप में एक पूरा का पूरा डेटा सेंटर है, ठीक है। ओके। सेंट्रल यूएस इट्स अ टाइप ऑफ डेटा सेंटर। और इस डेटा सेंटर के आप बोल सकते हैं कि मल्टीपल होस्ट हो सकते हैं। इसके अंदर n नंबर ऑफ होस्ट हम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और यही होस्ट हमें ऑप्शन देते हैं टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, टू क्रिएट अ SQL डेटाबेस, टू क्रिएट अ एप्लीकेशन सर्वर। ये होस्ट का काम है। डेटा सेंटर हमारा एक ही रहेगा, बट इसके अंदर नंबर ऑफ होस्ट आर अवेलेबल। क्लियर? ओके। ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन एनी नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी नंबर फिक्स नहीं बता रहे हैं अभी, बिकॉज आई नीड टू चेक द डॉक्यूमेंट। एवरी 15 days, एवरी 1 week, एवरी 1 month कुछ ना कुछ डेटा सेंटर ये ऐड करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ये जोन्स ऐड करते रहते हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब एनी नंबर, बट हाँ, लास्ट जो इनका अपडेट आया था बिफोर 6 month, उसके अकॉर्डिंग दे स्टैब्लिश अप टू 65 रीजियन जो प्लान कर रहे हैं अभी, और अप टू 124 जोन्स ये स्टैब्लिश कर रखे हैं, ठीक है, जिन पे इनका टास्क चल रहा है एज पर द डॉक्यूमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। 65 regions and 124 zones as per Microsoft data, Microsoft document। इतने रीजन और जोन्स पे इनका वर्क चल रहा है, बट कितने लाइव है वो अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। इज दैट ओके? वी आर अनेबल टू फाइंड दुबई, राइट, वी आर अनेबल टू फाइंड ओमान, जबकि इनके डॉक्यूमेंट में इन सभी कंट्रीज के अंदर इन्होंने डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रखे हैं, इन्होंने जोन बना रखे हैं। बट अगर आप एज्यूर पोर्टल ओपन करके देखोगे तो वहां पे कोई भी ऑप्शन हमें दुबई या ओमान का नहीं दिखाई पड़ता। ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, एंड यूएस है, इंडिया है, बट बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इनके डॉक्यूमेंट में तो मेंशन कर रखा है, बट एज्यूर पोर्टल पे अभी उनको नहीं देखा जा सकता। क्लियर? Guys, please यस सर। confirm about the difference between region and zone. Next, तो Yes, sir. रीज हर यस। एक डेटा सेंटर ना आपस में कनेक्टेड है। आप यूएस में सेटअप कर रखे हैं डेटा सेंटर को, या इंडिया में, या आप जापान लोकेशन में, किसी भी लोकेशन में आपने जो डेटा सेंटर स्टैब्लिश कर रखा है ना, कनेक्टेड टू ईच अदर, कनेक्टेड टू ईच अदर, बिकॉज ईच अदर कनेक्ट करने का बेनिफिट ये है कि आप अपने फेल ओवर की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जो फेल ओवर है ना, उसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि विदाउट फेल ओवर, अगर हम बात करें विदाउट फेल ओवर, जो एज्यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो परसेंटेज कितना है, 95.99%, ठीक है।
अगर आप विद जाते हैं, ठीक है ना, अगर आप विद फेल ओवर जाते हैं, विद फेल ओवर का मतलब यू हैव टू पे एडिशनल अमाउंट। आपको फेल ओवर में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जो खुद से मैनेज करने पड़ेंगे। सो व्हाट आर द फेल ओवर? बैकअप भी फेल ओवर का पार्ट है, ठीक है। रेप्लिकेशन फेल ओवर का पार्ट है, ठीक है। अवेलेबिलिटी सेट एंड जोन, अवेलेबिलिटी सेट एंड जोन। चौथा, डीआर। ये सभी सर्विसेज हैं जो हमें फेल ओवर का ऑप्शन देती हैं। मतलब 95%, 95.99% तो विदाउट पेड है। अगर आप कुछ पे करते हैं तो इसका जो पार्ट है 99.99%, 99.9999, 5 टाइम 9%, 98.99% मीन्स एज पर द बजट। डिफरेंट डिफरेंट फेल ओवर आपको मिलते हैं। जो फेल ओवर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने सेटअप के लिए, यू कैन डू दैट। ओनली द रीजन ऑफ ये जो फेल ओवर है डीआर का, अवेलेबिलिटी सेट का, अवेलेबिलिटी जोन का, रेप्लिकेशन का, किस वजह से है? क्योंकि ये सभी डेटा सेंटर आपस में कनेक्टेड है। दैट्स वाई वी आर एबल टू पुट आवर डेटा इन वन लोकेशन टू मल्टीपल लोकेशन। इज दैट क्लियर? That means all data sets are interconnected for इंटरकनेक्टेड, राइट। yes. बट इनको यूज करने के लिए, फॉर एग्जांपल यू एस्टैब्लिश योर सर्विस इन लोकेशन ऑफ इंडिया एंड यू वांटेड टू पुट अनदर कॉपी ऑफ योर रिसोर्स इन यूएस लोकेशन, तो इसका आपको पे करना पड़ेगा। इज दैट ओके? We Yes. have to pay the additional amount if you want to create a failover or disaster recovery and put your data or put your virtual machines copy in different geographical location, तो उसके लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो। हेलो, No, sir. No No question. question, sir. ठीक है। सो these all are the points that we discussed। पॉइंट 1 to 5 हमने सारी चीजें कवर कर ली। आई होप कि Sir, as आपने mention किया availability zone, so हाँ जी, that means we can have multiple data center, right, in one region, that is called availability zone. Is it right? एग्जैक्टली लेट मी गिव यू वन So एग्जांपल, ठीक है। someone asked like can we have multiple data center in a zone? नो, That means we can have multiple. Uh, मल्टीपल डेटा सेंटर। सी, रीजन में अपने पास यूएसए इज अ टाइप ऑफ रीजन, ठीक है, ठीक है। मल्टीपल, सॉरी, यूएसए इज अ रीजन एंड यूएसए कंटेन मल्टीपल डेटा सेंटर। जो यूएस जो रीजन है ना, ये मल्टीपल डेटा सेंटर को कंटेन करके रखता है। द डेटा सेंटर्स आर, जिनको हम जोन बोलते हैं ना, वही हमारे लिए डेटा सेंटर है। कौन कौन से हो गए? एन नंबर ऑफ। Central US is a type of zone and data center. West US is a type of data center, right? East US is a type of data center, ठीक है। Central Canada is also a type of zone। ये सभी जोन है। जब आप सेट ऑफ जोन की बात करते हैं, एक प्राइमरी जोन होगा, ये आपका प्राइमरी जोन है जहाँ पे आपने मशीन को क्रिएट किया, और आप अवेलेबिलिटी जोन तैयार करना चाहते हैं, मतलब एक कॉपी यहाँ पे भी रखना चाहते हैं वेस्ट यूएस में, एक कॉपी आप ईस्ट यूएस में रखना चाहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम इस लोकेशन पे हुई तो आप यहाँ से अपने इंस्टेंस को एक्सेस कर पाओ, या यहाँ से आप इंस्टेंस को एक्सेस कर पाओ। कंसीडर एज ए फेल ओवर, कंसीडर एज ए डीआर, डिजास्टर रिकवरी। Sir, दैट क्लियर? then what is the difference is geography? There is one more thing is there, right? Geography, region, and zone. हाँ, नहीं नहीं, जियोग्राफिकल जो आप रिकवरी की बात कर रहे हैं ना, वो कंसीडर किया जाता है आपके जब आप डेटाबेस में मैनुअल एडिटिंग करते हैं। एलआरएस जीआरएस की बात कर रहे हैं, राइट? Yes.
LRS, GRS, RAGRS. This is the part of our storage that we will discuss practically. तो हम practically ओके, जब cover करेंगे तो सारी चीजें clear हो जाएंगी. ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। चलो अभी आप ये go through कर लो ये जो points हैं 5 different points क्योंकि जो as a resource मैनेजर हम बात करेंगे एज ए रिसोर्स के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में ताकि हम प्रैक्टिकली दिखा सकें अकाउंट क्रिएट करके. बाकी इन 5 पॉइंट में कोई क्वेश्चन है आपका? सर, कैन वी हैव क्वेश्चन ऑन दीज टॉपिक्स जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, तो पैरेलली उसको भी नॉट नाउ, करते रहेंगे? नॉट नाउ बट every module, once we complete the every module we'll share up to list of 30 to 35 questions. ओके, सो Okay, इस this is मॉड्यूल this में ये 6 टॉपिक्स है ना, और या और नहीं भी है? 5 मॉड्यूल है ना, 5 मॉड्यूल है ओके। और हर एक मॉड्यूल में किसी में 8 हैं, किसी में 10 है, 12 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 7 हैं. तो जो भी है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कंटेंट हम उस मॉड्यूल खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चन की लिस्ट भेजेंगे ताकि आप उसको रिप्लाई कर सको. अभी देने का कोई फायदा नहीं क्योंकि आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे कि आप सोचोगे हमें तो कुछ आता नहीं. जब आप हम्म, कंप्लीट करके फील करोगे कि मुझे नहीं, कुछ नहीं आता तो उस केस में आप फिर तैयारी करोगे खुद से. तो मॉड्यूल वाइज हम शेयर करेंगे ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सको अच्छे से. ठीक है? श्योर श्योर। एनी अदर क्वेश्चन गाइस, प्लीज लेट मी नो. इज दैट ओके? यस सर। ठीक है. सो आई शेयर द रिकॉर्डिंग इन 1 आवर. 1 घंटे में मैं आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजूंगा रिकॉर्डिंग का और आप प्लीज इसको डाउनलोड करके आप अपने लोकल हार्ड डिस्क में रखते जाओ क्योंकि ये जो लिंक है ना, आई डोंट नो कि गो टू मीटिंग में क्या दिक्कत चल रही है. तो आप तुरंत के तुरंत डाउनलोड करके क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जितनी भी क्लासेस होंगी उनको आप सीक्वेंस वाइज रख लेना. ठीक है? ताकि जब आप खुद से तैयारी करेंगे तो दिस रिकॉर्डिंग्स आर रियली हेल्पफुल. क्लियर? ओके, यस। Okay, everyone. So thank you so much. We'll connect tomorrow on same time. Discuss more about the Azure services. Thank you, guys. श्योर Take सर, care. Good थैंक यू। night. गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir.